ہو خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات مسرور ہے جشن میلاد رسول ہے اے نبیوں کے سردار نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ میں آیا تیرے دربار میں آیا تیرے دربار میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ جشن میلاد النبی ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. ETV اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، خاص بات میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں سید احمد جیلانی. پہلے نظر سرخیوں پر. مظفر نگر فسادات کے دوران اجتماعی عصمت دری کا معاملہ، 22 ملزمین کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری. کوٹا کے تحت گرفتار 3 نوجوانوں کو مراد آباد کی خصوصی عدالت نے کیا بری. 11 سال سے جیل میں تھے قید. کولکتہ کا گورنر ہاؤس وقف کی ملکیت، وقف بورڈ کو دیا جاتا ہے محض 147 روپے کرایہ. بورڈ چیئرمین جسٹس عبدالغنی نے کہا کی جائے گی جانچ. مہاراشٹر میں جمعیت علماء نے حکومت کے سامنے ریزرویشن سمیت رکھے 4 مطالبات. بصورت دیگر مسلمان نہیں دیں گے حکومت کا ساتھ. کرناٹک کا باگلکوٹ بنا گنگا جمنی تہذیب کی شاندار مثال. ایک ہی پنڈال میں 74 ہندو اور مسلم جوڑوں کی شادیاں. خاص بات میں پہلے بڑی خبر. مظفر نگر فسادات کے دوران اجتماعی عصمت دری کے 5 واقعات کے سلسلے میں 22 ملزمین کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیے گئے ہیں. یہ کارروائی مظفر نگر کے جوڈیشل مجسٹریٹ نریندر کمار نے کی ہے. معاملوں کی جانچ کرنے والی SIT نے فرار ملزمین کے خلاف کارروائی کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا. اجتماعی عصمت دری کے واقعات گزشتہ برس ستمبر میں ہوئے تھے. چھٹے واقعے میں 5 افراد ملوث ہیں. 27 میں سے 22 ملازمین کی شناخت کی جا چکی ہے. معاملہ اس وقت سرخیوں میں آیا تھا جب 6 فساد متاثرہ خواتین نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں کارروائی کے لیے ریاستی حکومت کو ہدایت دی تھی. سپریم کورٹ نے 15 مجرموں کی موت کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا ہے. ان کی رحم کی درخواست پر غور کرنے میں ہوئی تاخیر کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے.
جن مجرموں کی پھانسی کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کیا گیا ہے اس میں ویرپن کے گروہ کے 4 رکن بھی ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک عرضداشت کی سماعت کے دوران یہ فیصلہ سنایا ہے۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ سزا یافتہ مجرم کی دماغی حالت اگر ٹھیک نہیں ہے یا وہ سیزوفرینیا کے مرض میں مبتلا ہے تو اس کی سزائے موت پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ مراد آباد کی پوٹا عدالت نے 3 نوجوانوں کو بری کر دیا ہے۔ ان تینوں کو ملک مخالف سرگرمیوں اور دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں 2002 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالت نے تینوں کو خاطر خواہ ثبوت نہ ہونے پر رہا کیا ہے۔ ملزمین کو 11 سال بعد رہائی ملی ہے۔ مراد آباد میں پوٹا کے خصوصی عدالت کے جج روپ کشور گپتا نے پوٹا ایکٹ کے تحت گرفتار 3 نوجوانوں کو خاطر خواہ ثبوت نہ ہونے کی بنا پر رہا کر دیا۔ جاوید، تاج محمد اور مقصود پر پوٹا کے تحت لگائے گئے تمام الزامات کو بھی عدالت نے خارج کر دیا ہے۔ دہشت گردی اور ملک مخالف سرگرمیوں کے تحت گرفتار ان تینوں نوجوانوں کو 11 سال بعد رہائی نصیب ہوئی ہے۔ رامپور پولیس نے دہشت گردانہ سرگرمیوں کے الزام میں تینوں کو گنج کوتوالی سے 2002 میں گرفتار کیا تھا۔ میں اریسٹ کیا 4 لوگوں کو، اس میں جاوید اور گڈو اور آپ کا تاج محمد، مقصود اور ممتاز میاں، یہ چاروں ملزم پکڑے گئے تو ان سے کوئی خاص چیز برآمد نہیں ہوئی، صرف فوٹو اسٹیٹ اور کچھ ہاتھ کے لکھے ہوئے لیٹرز وغیرہ ملے ان سے، کہ ایک آدھ نقشہ اسے دکھا دیا کہ صاحب یہ وہاں کا کیمپ کا نقشہ ہے، یا گتیودیاں جو ہوتی ہیں، موومنٹ ہوتا ہے ملٹری کا، اس کی گتیودیوں کا وہ ہے بیورا ہے، کچھ رسید وغیرہ دکھائیں کہ صاحب یہ اس کی فیکس کی رسیدیں ہیں، اور یہ سب جو ہے ISI پاکستان کو بھیجتے تھے۔ یہ ایلیگیشن ان پہ لگایا گیا۔ ان ملزمین کے علاوہ STF نے ممتاز میاں نامی شخص کو بھی گرفتار کیا تھا، تاہم چارج شیٹ پیش کرنے کے بعد ممتاز پر سے پوٹا ہٹا لیا گیا تھا۔ اس معاملے میں مرکزی حکومت کی ریویو کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں پوٹا کے اطلاق کو غلط بتایا تھا۔ وکیل دفاع کا کہنا ہے کہ STF نے نوجوانوں پر جو سنگین الزامات عائد کیے تھے وہ عدالت میں ثابت نہیں ہو پائے۔ اب ٹرائل میں ایسا تھا کہ جو پروسیکیوشن ابیوزر پکش تھا اس نے جتنی ایویڈینس تھی، کئی بار یہ کوشش کی کہ یہ جو کس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ سے ملان کرنے کی کوشش کرائی، ان کے بھی یعنی ہینڈ رائٹنگ لیے گئے، مگر 3 بار ہینڈ رائٹنگ لینے کے بعد بھی وہ ہینڈ رائٹنگ جو ہے ان کے ہست لیکھ سے ملان نہیں کر پائی۔ اس معاملے کی کارروائی مراد آباد کی خصوصی پوٹا عدالت میں 11 سال تک چلی۔ الزامات کی سنگینی کی وجہ سے ان نوجوانوں کو ضمانت بھی نہیں مل پائی۔ آخرکار 11 سال بعد انہیں انصاف ملا۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ کرناٹک کے مختلف مقامات پر مودی اور مسلمان کے عنوان سے منعقد ہو رہے سیمیناروں کو جنتا دل سیکولر نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بنگلورو میں ہوئے JDS اقلیتی شعبے کے اجلاس سے پارٹی کے سیکرٹری جنرل عبدالعظیم نے کہا کہ نریندر مودی کو اب کیوں مسلمانوں کی یاد آ رہی ہے۔ عبدالعظیم نے کہا کہ گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کے حامیوں کی تنظیم نمو بریگیڈ مودی اور مسلمان کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کرتے ہوئے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ JDS ایک ایسی پارٹی ہے، BJP اور مودی کے دل میں کیا ہے وہ ہم اسکین کر کے ہم سمجھ چکے ہیں۔ ہم ان کی باتوں میں آ کر فول ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن کا وقت ہے، وہ مسلمانوں کے دل بھی بہلا سکتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ وعدہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم آسمانوں سے تارے بھی ہم توڑ کے لا کے دے سکتے ہیں، مگر یہ بات ماننے کی نہیں ہے۔ آج جو ہے کانگریس اور BJP دونوں جو ہے شیکی ہو چکے ہیں اور ان کا مقام جو ہے ڈے بائی ڈے لوگوں کی نگاہ میں گر رہا ہے۔ پچھلے 9.5 سال سے ان کی حکومت سینٹرل گورنمنٹ ہے ان کی، اور اس 9.5 سال میں ان کو یاد نہیں آیا کہ بھئی ٹیپو سلطان کی یونیورسٹی بنائی جائے۔ جب الیکشن سر پہ ہے تب ان کو یاد آتا ہے کہ ٹیپو سلطان کی یونیورسٹی بنائی جائے۔ یہ مسلمانوں کو ایک جھارکھنڈ میں AIUDF سیاسی زمین ہموار کرنے میں مصروف ہے۔ اس سلسلے میں پارٹی کا 6 رکنی وفد رانچی کے دورے پر ہے۔ رانچی میں پارٹی کے ارکان مسلم دانشوروں اور سماجی ارکان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ AIUDF کے جنرل سیکرٹری امین الاسلام کا کہنا ہے کہ پارٹی سربراہ بدر الدین اجمل فروری میں رانچی کا دورہ کریں گے۔
यहाँ में इंटरेस्टेड है और जिस फॉर्मूला हमारा असम में वो डिप्रेस कम्युनिटी जितना है, मुस्लिम है, दलित है, एससी है, एसटी है, सबको लेके हम लोग वहाँ में काम करें, वही फॉर्मूला यहाँ में काम होगा। जो लोग पिछड़ गए हैं वो पिछड़ते जा रहे हैं, चाहे वो आदिवासी हों, हमारे मुस्लिम भाई हों या हिंदू हों। तो उस चेहरे को बदलने के लिए, इस राज्य के लिए हम लोग एक सेकुलर पार्टी के रूप में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट आ रहे हैं और इसमें बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, प्राय हर डिस्ट्रिक्ट से, हर जगह से लोग जुड़ रहे हैं और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा इलेक्शन में भी और विधानसभा इलेक्शन में भी हम लोग। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दिल्ली का जहां पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल इस वक्त मीडिया से बात करें। आपको बता दें हड़ताल खत्म हो चुकी है और जिन पुलिस वालों को हटाने की बात की गई है वो फिलहाल छुट्टी पर चले जाएंगे। और अंत में इस धरने की वजह से जिन जिन लोगों को मेट्रो बंद की गई, बैरियर लगाए गए, दिल्ली सरकार चाहती थी कि मेट्रो बंद ना की जाए, दिल्ली सरकार चाहती थी बैरियर वगैरह की क्या जरूरत है, लोगों को आने जाने दिया जाए, लेकिन जिन जिन लोगों को इसकी वजह से इनकन्वीनियंस हुई उसके लिए भी हमें लगता है कि उसको बचाया जा सकता था। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि इस लंबी लड़ाई में आज सब लोगों की आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण जीत हुई है। अब हम यहाँ पे अपना धरना समाप्त करते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, अरे माइक दे दो, माइक। आज जैसा कि आप देख रहे थे दिल्ली के वज़ीर आला ने हड़ताल खत्म करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। और आगे बढ़ते इंतखाबात से कबल हर बार बरसर इख्तियार पार्टियां मुसलमानों को उनके मसाइल के सिलसिले में महज वादों और यकीन दहानियों का झांसा देकर मुतमईन करती आ रही हैं, लेकिन इस बार मुसलमान हुकूमत के इन झांसों में आने वाला नहीं है। इन ख्यालात का इजहार जमीयत उलमा के महाराष्ट्र सदर हाफिज नदीम सिद्दीकी ने हुसूल इंसाफ के उन्वान से बीड़ में मुनक्किदा जलसे आम से खिताब के दौरान किया।
जमीयत उलमा महमूद मदनी ग्रुप की जानिब से इन दिनों हुसूल इंसाफ के उन्वान से बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत महाराष्ट्र के जिला बीड़ में इजलास आम का इनकाद अमल में आया। जलसे में जमीयत के जिम्मेदारों ने मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफियों के लिए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए मुस्लिम रिजर्वेशन, बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की रिहाई, वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ और फसाद मुखालिफ बिल की मंजूरी को वक्त की अहम जरूरत बताया। इजलास में ये इंतबाह भी दिया गया कि अगर हुकूमत ने इन नुकात पर अमल नहीं किया तो उसे आइंदा इंतखाबात में खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम 4 मुतालबात और 4 डिमांड्स को लेकर पूरे सूबे के अंदर आवाज बुलंद कर रहे हैं। नंबर 1 रिजर्वेशन, नंबर 2 इंसदाद फसाद कानून बिल और नंबर 3 बेकसूर नौजवानों की रिहाई और नंबर 4 तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ और दीगर मसाइल। जैसे महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के ऊपर को अमली जामा पहनाते हुए जब तक मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा उस वक्त तक हम इनका साथ नहीं देंगे। इजलास में बीड़ शहर के अलावा जिले के मुख्तलिफ मकामात से हजारों की तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की और जमीयत उलमा की जानिब से आइंदा माह चलाई जा रही जेल भरो तहरीक में हिस्सा लेने की यकीन दहानी कराई गई। कुर्सी पर हमने बैठाना तो कुर्सी पर हम कुर्सी से उतार सकते हैं। मैं उससे नीचे उतर के एक बात और कहता हूँ, हम अगर दूसरी सरकार को बैठाने के लायक नहीं है, लेकिन तुम जालिमों को उतारने के लायक कल भी थे और आज भी है। बेशक याद रखिएगा, पूरे मुल्क में हमारा वोट बैलेंस है। महाराष्ट्र में 15% हमारा वोट है। महाराष्ट्र के अंदर ईटीएस का कुल इंतहाई नंगे पने के साथ बढ़ चुका है। आप देख लीजिए, जैसे इस बीड़ शहर पर टारगेट बनाया गया, बेकसूर नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर लठार लगा रहा है। जमीयत के जिम्मेदारों ने फरवरी माह में जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया। लोगों से इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील भी की गई। ईटीवी न्यूज भीड़। मदीना एजुकेशन सोसाइटी के तालीमी इदारों को आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से तहवील में लेने की कोशिश पर हैदराबाद के माहिरीन तालीम, समाजी शख्सियतों और दानिश्वरों ने मजम्मत की। दानिश्वरों ने वक्फ बोर्ड की मंशा पर भी सवाल उठाया है। आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड ने गुज़िश्ता हफ्ते मदीना एजुकेशन सोसाइटी के उन तालीमी इदारों को अपनी तहवील में लेने का ऐलान किया था जो अंजुमन शूरा दस्ती पारचा हरमैन शरीफैन वक्फ की इमारतों में कायम की गई हैं। वक्फ बोर्ड को ये शिकायत थी कि मदीना एजुकेशन सोसाइटी 12 याद दहानी के बावजूद बहुत कम किराया अदा कर रही है। लिहाजा ये जवाब पेश किया गया कि हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक वक्फ बोर्ड इन इदारों को अपनी तहवील में ले रहा है। वक्फ बोर्ड के इस इकदाम पर हैदराबाद के दानिशवरों और माहिरीन तालीम ने हैरत और अफसोस का इजहार किया है। वक्फ बोर्ड ने एक्शन लिया है। डेफिनेटली इट इज हाई हैंडेड एंड हाईली कंडेमनेबल। इस किस्म के अगर गवर्नमेंट की मशीनरी और इंस्टीट्यूशंस काम करें तो कम्युनिटी या सोसाइटी से कोई भी वॉलंटरी काम करने में परहेज करेगा। मदीना एजुकेशन सोसाइटी के खिलाफ रियासती वक्फ बोर्ड की कार्रवाई पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि बोर्ड सैकड़ों एकड़ अराजी पर नाजायज काबजीन के खिलाफ कार्रवाई करने में तो नाकाम है, लेकिन एक ऐसे अक़लियती तालीमी इदारे के खिलाफ कार्रवाई क्यों की जो न सिर्फ खुद को वक्फ बोर्ड का किरायादार तस्लीम करता है बल्कि पाबंदी से किराया भी अदा कर रहा है। इकबाल साहब, आप एमपी बना बोले तो 2 महीने के बाद सीमांध्रा जय सीमांध्रा पार्टी किरण कुमार रेड्डी स्टार्ट कर रहे, आपको एमपी टिकट जरूर मिलते, बट आपका एमपी टिकट के लिए एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन को ये करना गलत बात है। मदीना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंक्रोचर नहीं है साहब, लीज पर लिए लैंड, वो खुद बोल रहे लीज पर लिए, नॉट एंक्रोचर। और आप बोल रहे बहुत कम रेंट दे रहे, आप नोटिस देके रेंट को ज्यादा कराओ बोलो। मदीना एजुकेशन सोसाइटी के तालीमी इदारों को न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि पूरे जुनूबी हिंद में मियारी तालीमी इदारों की हैसियत से जाना जाता है। खुद हुकूमत आंध्र प्रदेश 2 मरतबा मदीना इदारों को अपने अवार्ड्स नवाज चुकी है। हैदराबादी दानिशवरों और माहिरीन तालीम ने हुकूमत से अपील की है
कि वो एक अक़लियती तालीमी इदारे के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई के जरिए गलत नजरिया पेश करने से बाज आए। ETV न्यूज हैदराबाद। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वक्फ इमलाक की लूट खसोट तो पूरे मुल्क में मची है, जिसमें अपने और पराये तो है ही, रियासती हुकूमतें भी वक्फ इमलाक पर गैर कानूनी कब्जे में पीछे नहीं है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मगरबी बंगाल के राजभवन की जमीन भी वक्फ की मिल्कियत है। मगरबी बंगाल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जस्टिस अब्दुल गनी ने इस मामले की तस्दीक करते हुए इस मसले पर वज़ीर आला से मिलने की बात कही है। टीवी को कुछ ऐसे अहम दस्तावेजात हाथ लगे हैं जिनसे ये मालूम होता है कि मगरबी बंगाल के राजभवन की शानदार इमारत जिस जमीन पर खड़ी है वो जमीन वक्फ की ही मिल्कियत है। राजभवन से वक्फ बोर्ड को इस जमीन के माहाना महज 147 रुपए ही अदा किए जाते हैं। ये जमीन 1897 में वक्फ की गई और इन कागजात में मुतवल्ली और मालिकान के खाने में अब्दुल मतीन और नईमुद्दीन का नाम दर्ज है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से जब इस सिलसिले में बात की गई तो उन्होंने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि किराया 500 गुना कम है। उन्होंने इस मामले की मजीद तहकीकात की यकीन दहानी भी कराई है। वक्फ बोर्डेर যে সমস্ত প্রপার্টি আছে যেগুলো এনরোল আছে সেগুলো যেন ঠিকভাবে আমরা ম্যানেজ করতে পারি, আইডেন্টিফাই করতে পারি, উদ্ধার করতে পারি, এই নিয়ে স্টেপ নেওয়া। আর যেগুলো সরকারি কিছু তো রয়েছে, যেমন আমাদের রাজা চেম্বারে ওটা তো একটা প্রপার্টি, ওখানে সরকারি অফিস চলতো, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অফিস চলতো, ওরা এখন রিসেন্টলি ছেড়ে চলে গেছে। স্টেট গভর্নমেন্টের 2-1টা অফিস আছে, শহরের বিল্ডিংও গভর্নমেন্টের 2-1টা অফিস আছে। আমাদের কাছে খবর আছে রাজভবনটাও নাকি ওয়াকফ প্রপার্টি। রাইটের সম্বন্ধে আমার কোনো নলেজ নেই, কিন্তু রাজভবনের ওয়াকফ প্রপার্টির একটা ফাইল আছে, কম মানে 500 টাইমস কম এরকম। वाज़ेह रहे कि वक्फ इमलाक के नए कवानीन के मुताबिक इन तमाम कब्ज़ात को हटाया जाना या इसका मुनासिब हल तलाश करना आसान कर दिया गया है। जिन जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे हैं या मुनासिब किराया अदा नहीं किया जाता, मकामी इंतजामिया को भी इस कानून के तहत पाबंद किया गया है। बोर्ड के चेयरमैन ने पूरे दस्तावेजात के साथ वज़ीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात की बात भी कही है। সম্পত্তিগুলো উদ্ধারের জন্য কিছু বেটার হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট এদের উপরে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে বোর্ডের ডিসিশন মানতে ওরা বাধ্য। দে উইল বি গভর্নমেন্টের সঙ্গে করেসপন্ডেন্স করবো, কনসাল্ট করবো, কারণ ওয়াকফ বোর্ড ইজ আন্ডার দি কন্ট্রোল অফ দি গভর্নমেন্ট। হ্যাঁ, ন্যাচুরালি আমরা ইগনোরিং গভর্নমেন্ট এ নিয়ে একটা অ্যাকশনটা ভাবা যাবে না, যেহেতु এটা রাজভবন। मगरबी बंगाल में ये पहला मामला है कि वक्फ बोर्ड ने सरकारी इमारतों की जांच शुरू करने का फैसला किया है। अब अक़लियतों की हिमायती कही जाने वाली मगरबी बंगाल हुकूमत इस मामले में क्या इक़दाम करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ETV न्यूज, कोलकाता। झारखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड पिछले 5 महीनों से तहलील है। झारखंड अक़लियती कमीशन के चेयरमैन का कहना है कि बोर्ड तहलील होने की वजह से वक्फ इमलाक पर नाजायज कब्ज़ात के मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर शाहिद अख्तर ने फौरी बॉडी तश्कील देने का मुतालबा किया है।
की जा रही है। इस तरह के मामलात बहुत सामने आ रहे हैं कि वक्फ के प्रॉपर्टी का कब्जा लोगों ने कर रखा है और सरकार के सरकारी स्तर पर भी बहुत सारे शिकायतें आ रही कि उनके द्वारा भी कब्जा किया गया है, जिसे धनबाद में रेलवे की तरफ से किया गया है। तो जल्द से जल्द इसकी गठन होना चाहिए। इसके लिए मैंने राज्यपाल से भी मांग की है और आज हम यहाँ के जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हाजी हुसैन अंसारी साहब इनसे भी मिलेंगे कि जल्द से जल्द इसकी गठन कम से कम एक सप्ताह के अंदर में कर दिया जाए। शिमाली कर्नाटक के एक छोटे से शहर इलक्कल में मुस्लिम नौजवानों की तंजीम ने फरकावाराना हम आहंगी की एक शानदार मिसाल कायम की है। पिछले 10 बरसों से लिमरा वेलफेयर एसोसिएशन नामी तंजीम गरीब जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम करती आ रही है। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में हिंदू जोड़ों की भी काबिल लिहाज तादाद मौजूद रहती है। कर्नाटक के जिला बागलकोट के छोटे से शहर लकल में पिछले 10 बरसों से इज्तिमाई शादियां हो रही हैं। मकामी मुस्लिम नौजवानों की तंजीम लिमरा वेलफेयर एसोसिएशन के तहत मुनक्किद होने वाली इज्तिमाई शादियों की तकरीब में मुसलमानों के अलावा हिंदू जोड़े भी अजदवाजी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इस साल कुल 74 मुस्तहक जोड़ों की शादियां अंजाम पाईं। उनमें 23 हिंदू जोड़े शामिल हैं। और ये पैगाम मैं लिमरा वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से और यहाँ के रहने बसने वाले हिंदुओं और मुसलमानों की जानिब से आप सबको देना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क में इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के प्रोग्रामों की और इस तरह के इजलास की शदीद जरूरत है, जहाँ हिंदू और मुसलमान आपस में मिल बैठकर इस तरह के प्रोग्रामों में शिरकत करें, एक दूसरे का सब दुख बांटें, एक दूसरे की खुशी में शरीक रहें, गरीबों की मदद करें, यतीमों को सहारा दें। हमारे रसूल ने जो हमें सिखाया है, जो हमारे और बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, हमारे नौजवान उस रास्ते पर चलकर एक हिंदुस्तान के बेहतरीन शहरी बनने की कोशिश करें और दूसरों को भी अपने जो भाई इस साल तकरीबन 78 जोड़ी जाई है। कुल 10 साल में मिलाकर 750 से ज्यादा हम लोग शादियों का इंतजाम भी कर चुके हैं। बगैर किसी की मदद के हमारे नौजवानों की माली इमदाद से ये काम आज तक होता आया है। हिंदू मुस्लिम और यहाँ के सब कास्ट सब सर्वधर्म काम करते आए। 10 साल से जो है गरीब जोड़ियों का शादियां कर रहे हैं। इस साल 250 लोगों का जो है गरीब जोड़ियों का शादी का बेड़ा हमने उठाया था और 78 जोड़ी जो है इस साल हमारे यहाँ मौजूद है। उन सब लोगों को हम शादियां करके दे रहे हैं। कुल 10 साल में जो है तकरीबन 750 जोड़ियों का हमने शादी किया है। 10 साल के अरसे में लिमरा वेलफेयर एसोसिएशन के तहत 875 मुस्तहक जोड़ों के अजदवाजी रिश्ते उस्तवार किए गए। इज्तिमाई शादियों के अलावा ये तंजीम समाज के गरीब तबके को तालीमी तिब्बी इमदाद भी फराहम कर रही है। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। ईरान के अरकान पार्लियामेंट के वक्त ने आंध्र प्रदेश असेंबली के सेक्रेटेरिएट में रियासत के वजीर अक़लियती बहबूद सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह से मुलाकात की। वफ्द में ईरान के सफीर बराए हिंद गुलाम रजा अंसारी, हैदराबाद में वाक़ ईरानी काउंसिल खाने के काउंसिल जनरल हसन नूरियान और आंध्र प्रदेश अक़लियती बहबूद के कमिश्नर शेख इकबाल, अक़लियती मालियाती कारपोरेशन के MD प्रोफेसर S शकूर और अक़लियती महकमे के स्पेशल अफसर उमर जलील भी मौजूद थे। इस मौके पर सैयद अहमदुल्लाह ने ईरानी वक्त को यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत ने आशुर खानों के लिए कसीर बजट मंजूर किया है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की तश्कील न करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में तौहीन अदालत की अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी गुजार के मुताबिक अदालत ने हुकूमत को पिछली समाअत के दौरान 6 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की तश्कील न करने की हिदायत दी थी, जिस पर मुद्दत गुजर जाने के बावजूद अमल नहीं हुआ है। इस पर 23 जनवरी को समाअत होगी। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर।